یا ربی کلی عبادک یقول ھذا، اے میرے مولا یہ ورد، یہ وظیفہ تو تیرا ہر بندہ کرتا ہے، میں تو ایسا وظیفہ، ایسا ورد پوچھنا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو، صرف مجھے عطا ہو۔ خدا بند قدوس نے فرمایا، اے میرے کلیم، لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث کی کتب میں موجود ہے روایت کہ رحمت کائنات امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور تمام زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں موجود ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں موجود ہے، وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار رکھ دیا جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار والا کلمہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار آسمانوں سے باری ہے اور جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اس سے باری ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار زمینوں سے باری ہے اور جو کچھ زمینوں میں موجود ہے ان سب سے باری ہے۔ یہ عظیم کلمہ اتنا عظیم اور باری ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ معزز سامعات، کلمہ توحید تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ آیت الکرسی کا دعویٰ اتنا عظیم اور بلند تر ہے کہ اس کے اقرار سے گناہ دھل جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخشش کی چادر انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہاں، ساری زندگی کفر و شرک کرنے والا انسان، کفر و شرک میں زندگی بسر کرنے والا انسان، اللہ کی کھلی نافرمانیاں کرنے والا انسان، کفر و الحاد کے سمندر میں غرق ہونے والا انسان، منکر خدا جیسا بھیانک مجرم، گناہ اور عصیان کاری کی دلدل میں پھنسا ہوا بدنصیب، جس کے اعمال نامہ میں کفر و شرک سے لے کر ادنیٰ گناہ تک ہر قسم کی خرابی اور فساد موجود ہے، وہ کافر، وہ مشرک شخص جب سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا آج ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ غور و فکر کا مقام ہے، جب کافر اور مشرک انسان اس کلمہ کے پڑھنے سے کفر و شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے تو کوئی گناہ گار مسلمان جب اس کلمہ کو پڑھتا ہوگا تو کیا اس کے گناہ نہیں دھلتے ہوں گے؟ اس کے گناہ نہیں مٹتے ہوں گے؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اللہ رب العزت کیا اس کی بخشش نہیں فرماتے ہوں گے؟ اس کی مغفرت و بخشش نہیں ہوتی ہوگی؟ ضرور ہوتی ہوگی۔ گناہوں کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صابن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ فی ساعت من لیل ونہار الا طمست فی الصحیفۃ من السیئات حتی تسکن
इला मिस्लिहा मिनल हसनात। सुभान अल्लाह। रहमत कायनात सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात और दिन की किसी घड़ी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उस बंदे के अमाल नामा में से उसकी बुराइयां मिटा दी जाती हैं, मिट जाती हैं। बल्कि ना सिर्फ बुराइयां मिट जाती हैं बल्कि बुराइयों की जगह नेकियां लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। हदीस की कुतब में एक और वाक़या मौजूद है कि एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हालत ये थी कि बेहद गमगीन थे, चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार थे, परेशानी के निशानात थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परेशानी और अफसुर्दगी को भांप लिया। पूछा, क्या बात है, आज कुछ अफसुर्दा और परेशान दिखाई देते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुज़श्ता रात मैं अपने चचाज़ाद भाई के पास था और उसका आखिरी वक़्त था, निज़ा का आलम था। बस ये कैफियत बार बार मेरे सामने आती है तो तबीयत परेशान हो जाती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुमने उस आखिरी वक्त में अपने चचाज़ाद भाई को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन नहीं की थी? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे कलमा की तलकीन की थी। अज़ीज़ सामियात, याद रखिए, तलकीन करने का मफ़हूम ये नहीं कि मरने वाले को बार बार कहा जाए कलिमा पढ़ो, कलिमा पढ़ो। ऐसे मत कहो। हो सकता है कि मौत की सख्ती की वजह से, सकरात मौत और निज़ा की शिद्दत की वजह से वो कहीं इनकार कर दे और काफिर हो जाए। तलकीन का मफ़हूम ये है कि मरने वाले के करीब कुछ आवाज़ से, यानी मामूली ऊंची आवाज़ से कलमा पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़बान पे भी जारी फरमा दें और वो सुनकर खुद ब खुद पढ़ने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे कलिमा की तलकीन की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या फिर उसने कलिमा पढ़ा था? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, उसने कलमा पढ़ लिया था। इरशाद फरमाया, वाजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कैफ़ा हिया लिल अहयाई, ज़िंदा लोग इस कलमा को पढ़ें तो उनको क्या मिलेगा? ये कलमा ज़िंदा लोगों के लिए कैसा है? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, हिया अहदमु लिज़ुनूबिहिम, हिया अहदमु लिज़ुनूबिहिम, ये कलिमा अपने पढ़ने वालों के गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आयतुल कुर्सी का दावा इतना अजीम है कि इसको सिद्क़े दिल से पढ़ने की वजह से कुफ्र व शिरक और हर किस्म के गुनाह मिट जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रिवायत है कि सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो, इसलिए कि सबसे बड़ा शैतान इब्लीस कहता है, अहलक्तुन नास बिज़ुनूबी, मैंने लोगों से गुनाह करवा के उनको तबाही और बर्बादी के घड़ों में फेंक दिया। जब वो गुनाह करते हैं, यानी जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर वो बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता,
दूसरा गुनाह कर लेता है, दूसरा नुक्ता लग गया, फिर उसको तौबा की तौफीक नहीं हुई, इस्तिग़फ़ार नहीं की और गुनाह पे गुनाह करता रहा, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर वो बंदा गुनाहों को मामूली समझकर करता रहता है और उसे नेकियों में लज्जत हासिल नहीं होती। लेकिन अगर बंदा गुनाह करने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह से डर जाता है, तो अल्लाह ताला उस स्याह नुक्ते को मिटा देते हैं। लेकिन अगर पूरा दिल स्याह हो गया, ज़ंग आलूद हो गया और फिर उसे तौबा की तौफीक नहीं होती, फिर उसका दिल ज़ंग में डूब जाता है। इब्लीस कहता है, मैंने लोगों से गुनाह करवा के उनको हलाक और तबाह व बर्बाद कर दिया। व अहलकूनी बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिग़फ़ार, और लोगों ने मुझे हलाक कर दिया। और क्या कहता है? लोगों ने मुझे हलाक कर दिया, लोगों ने मुझे तबाह व बर्बाद कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार के साथ, कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनके पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कलमा और इस्तिग़फ़ार यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह उनके दिलों को शीशे की तरह साफ और शफाफ कर देता है। फिर इब्लीस कहता है, जब इस तरह मैंने अपनी नाकामी देखी और देखा कि मेरा फेंका हुआ जाल कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया? अहलकतुहुम बिल अहवाई, मैंने उन लोगों को हलाक करना शुरू कर दिया ख़शाते नफ्स के पीछे लगाकर। वहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, फिर मैंने उनको जब हवाए नफ्स यानी बिदआत के ज़रिए हलाक कर दिया, उनसे बिदआत करवाई और वो क्या समझते रहे? वहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो समझते रहे कि हम नेकी और हिदायत के काम कर रहे हैं। बिदअत क्या है मेरी अजीज़ माँ बहनों? बिदअत दीन में नया काम जारी करना है। जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, जो काम अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, और आज हमें शैतान बरगलाता है कि ये काम करो, इसमें नेकी है, इससे अल्लाह राज़ी होगा, ये अल्लाह का रसूल राज़ी होगा, और हम वो काम सवाब समझ कर करें कि हम सवाब कमा रहे हैं, तो ये है बिदअत। जो काम दीन में करें, वो काम जिसको सवाब समझ कर करें और उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ना किया हो, वो काम दीन में नया जारी करना जो है वो बिदअत है। और शैतान ने हमें आज बिदअत के ज़रिए हलाक करना शुरू कर दिया है। शैतान कहता है कि जब मैंने उनको बिदअत के ज़रिए हलाक करना शुरू किया, तो अब उनको तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक नहीं होती। इसलिए कि हर गुनाहगार जब कोई गुनाह का काम करता है तो उसे गुनाह ही समझता है, और ये भी जानता है कि अल्लाह नाराज़ होगा, मेरे गुनाह करने पर मुझे सज़ा मिलेगी, अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा, मुझे सज़ा देगा। यानी जब कोई चोर चोरी करता है तो वो सवाब समझकर चोरी नहीं करता, उसे पता है मैं गुनाह कर रहा हूँ। जब कोई ज़ानी ज़ना करता है तो वो नेकी समझकर नहीं करता, उसे पता है मैं गुनाह कर रहा हूँ। जब कोई कातिल कत्ल करता है तो वो सवाब समझकर कत्ल नहीं करता। कोई शराबी नेकी समझकर शराब नहीं पीता। अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसे गुनाह ज़रूर समझता है। अगर कोई बदनसीब रोज़ा